Good morning, dear students. How are you? Dear students, today we are going to talk about oligopoly. Oligopoly is also a market condition. लेकिन इस market condition में a few sellers होते हैं. तो इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में इस वर्ड को डिवाइड करके करते हैं, ओलिगो एंड पोली. बच्चे, what do you mean by oligo? Oligo का मतलब होता है a few and poly means sellers. So, oligopoly refer to the market conditions where there are a few sellers of a commodity. But remember, the sellers range between only 2 to 10. मतलब 2 sellers से लेकर 10 sellers तक हमारी मार्केट के अंदर हो सकते हैं. And these people are selling either the differentiated product or they are selling the homogeneous product in the market. Either they are selling a different product, different type of the products, कुछ close substitutes, या even the homogeneous product is also being sold by each seller, right? So बच्चे, oligopoly is an important form of imperfect competition. We were doing an imperfect competition और imperfect competition में हमने monopolistic market structure देख लिया था. कुछ monopolistic की तरह ही है, but where is a difference? मोनोपोलिस्टिक के अंदर बहुत सारे सेलर्स थे और वो स्मॉल साइज सेलर्स थे. यहाँ पे बहुत कम सेलर्स हैं लेकिन बहुत बिग साइज सेलर्स हैं. इनकी जो फर्म्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं. इज़ दैट क्लियर? बच्चे, ओलिगोपोली यहाँ पर यू शुड रिमेंबर कि किन किन इंडस्ट्रीज़ के अंदर वी टेंड टू हैव ओलिगोपोली. वी कैन हैव ओलिगोपोली इन अ कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हैं. यू कैन हैव एन ओलिगोपोली इन अ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. You can even have an this thing, automobile industry, you know it very well, like cars की industry, buses की industry. इतना ही नहीं, even in the terms of mobile providers, we have the oligopoly kind of a situation. Is that clear? So now, dear students, let's start with the types of oligopoly. When I talk about the types of oligopoly ना, सबसे पहला टाइप जो oligopoly का हम लोग करेंगे, that is known as a pure oligopoly. बच्चे, do you know what is the difference? What do you understand by a pure oligopoly? प्योर ओलिगोपोली का मतलब है जहाँ पे सिर्फ ये ओलिगोपोली जितनी भी फर्म्स हैं, दे डील इन द होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. इज दैट क्लियर? कौन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है. लाइक एल्यूमिनियम इंडस्ट्री. एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में सिर्फ एल्यूमिनियम की शीट्स ही प्रोड्यूस करी जाती हैं. इज दैट क्लियर? मोल्डिंग तो बाद में होती है. Next is differentiated or imperfect oligopoly, where the products are differentiated. Example, toilet products. It can be the example, particularly can be a deal in some differentiated product जो कि market के अंदर available हैं. Is that clear? Now, but just try to understand. When I talk about this particular point, you should be clear that the differentiated oligopoly और imperfect oligopoly के अंदर products एक दूसरे से quite मिलते जुलते होंगे. Not the pure substitutes, but substitutes to some extent. Next is the open oligopoly. What do you understand by an open oligopoly? New firms can enter the market and compete with the existing firms, right? नई firms अब market में अंदर आ सकती हैं और जब वो market में enter कर जाती हैं तो they are competing with the existing firms. Next is known as a closed oligopoly. Okay बच्चे, let's first of all talk about an open oligopoly की जब बात करते हैं ना, तो you should be just considering the example of Jio. अब Jio as a network provider came quite late, लेकिन स्टिल ये एक मार्केट में टॉप पोजीशन पे पहुंच गए. पहले एयरटेल, हच, हम लोग आइडिया, यही सब सर्विस प्रोवाइडर्स देखते थे, बट नाउ Jio is on the top. Is that clear? Possible only because of open oligopoly. और हर कोई उठकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता? क्योंकि when we talk about the mobile industry, बच्चे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा है. When we talk about the सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर कोई उठकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेगा. Next is a closed oligopoly. What do you understand by a closed oligopoly? Where entry of new firms is totally restricted. जहाँ पे नई फर्म्स की जो एंट्री है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होती है. That type of oligopoly is known as a closed oligopoly. Now बच्चे, we talk about the next type of oligopoly and that is collusive oligopoly. बच्चे, what do you understand by collusive? Collusion means मिल जाना. Is that clear? So this means when 2 or more firms who are producing approximately the same product
लेकिन हर कोई इतना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा था। लेकिन अब जब ये 3 या 4 फर्म्स अपने हाथ एक साथ ज्वाइन कर लेती हैं, दे मीट विद ईच अदर, दे जॉइन हैंड्स विद ईच अदर एंड दे फॉर्म वन ग्रुप और कार्टेल, दैट ओलिगोपोली इज़ नोन एज कोल्यूसिव ओलिगोपोली। और कोल्यूसिव ओलिगोपोली के पीछे का रीज़न क्या होता है? दे वांट टू अवॉइड द कंपटीशन। ये लोग अब कंपटीशन को अवॉइड करना चाह रहे हैं, दैट्स वाई दे आर फॉर्मिंग अ कोल्यूसिव ओलिगोपोली। मिलकर काम करेंगे और मिलकर ये अच्छी भली मोनोपोलिस्टिक पावर को अटेन कर लेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ दे वुड बी बिकमिंग आइदर द मोनोपोलिस्ट ऑल्सो। नेक्स्ट ओलिगोपोली बच्चे इज़ नोन एज वॉट? और अच्छा, एक और बात बच्चे, यू शुड बी रिमेंबरिंग, अंडर द कोल्यूसिव ओलिगोपोली दे वुड बी हैविंग अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, दे वुड बी फिक्सिंग अ प्राइजेस टुगेदर, दे वुड बी फिक्सिंग द आउटपुट लेवल टुगेदर। नेक्स्ट इज अ पार्शियल ओलिगोपोली। What do you understand by a partial oligopoly बच्चे? Where the industry is dominated by just one large firm which is looked upon by the other firms as the leader of the group, and the dominating firm will be the price leader. Partial oligopoly के अंदर अब हम क्या करते हैं, आपकी 7 to 10 firms हैं। इज़ दैट क्लियर? लेट मी टॉक अबाउट द मोबाइल प्रोवाइडर्स। हम जियो इस समय ऑन द टॉप चल रहा है, तो उसको हम प्राइस लीडर बना देंगे क्योंकि उसका मार्केट शेयर ही 70% का है। एयरटेल का सपोज करो 20% का है, और किसी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर का देखो सिर्फ 5%, 2%, 3% ऐसे हैं। तो जिसका सबसे ज़्यादा परसेंट शेयर होता है हम उसको हेड बना देते हैं और वो ही इनके प्राइस एंड आउटपुट के डिसीजंस लेगा। इज़ दैट क्लियर? एंड यहाँ पर ही इज़ अ प्राइस लीडर। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट इज फुल ओलिगोपोली। बच्चे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फुल ओलिगोपोली? वेयर देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप। अब प्राइस लीडरशिप नहीं है, उसकी टोटल एब्सेंस है, तो दैट ओलिगोपोली इज़ अ फुल ओलिगोपोली। नेक्स्ट इज अ सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। बच्चे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंडिकेटेड? फर्म सेल्स देयर प्रोडक्ट थ्रू सेंट्रलाइज सिंडिकेटेड चैनल। फर्म्स अपने प्रोडक्ट को किसके थ्रू सेल करेंगे? एक सिंडिकेटेड सेंट्रलाइज्ड चैनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचेंगे। अगर 2 to 10 है ना, तो एक यहाँ पर एक चैनल बना दिया जाता है और उसी चैनल के थ्रू यहाँ पर सेल करी जाती है अपने प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। बच्चे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली? सी टू इट। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ओपेक। पहले एक और एग्जाम्पल होता था डी बेयर डायमंड्स, उनका। दे आर एक्चुअली फर्म्स ऑर्गेनाइज इनटू अ सेंट्रल एसोसिएशन फॉर फिक्सिंग द प्राइस, राइट? अब ये लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, सेंट्रल एसोसिएशन बना लेते हैं और वहाँ पे प्राइसेस को, आउटपुट को, कोटा को फिक्स कर दिया जाता है। एंड द एग्जाम्पल जो कि लाइव एग्जाम्पल है इज़ द ओपेक कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर इन्होंने एक क्या बना लिया, दे आर पर्टिकुलरली फॉर्मिंग ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। बैरल का रेट डिसाइड कर देते हैं और उसी रेट के ऊपर पूरी की पूरी मार्केट में उसकी सप्लाई करी जाती है। इज़ दैट क्लियर? यू शुड बी रिमेंबरिंग एक किस कंट्री ने कितना सप्लाई करना है ये भी ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है। इज़ दैट क्लियर? राइट? इवन आउटपुट इज़ डिटरमाइंड, इवन द कोटा लिमिट इज़ डिटरमाइंड कि एक कितना अमाउंट का सप्लाई कर सकता है। सो दिस टाइप ऑफ एन ओलिगोपोली इज़ नोन एज एन ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। एंड डू रिमेंबर यहाँ पे द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली, इट इज़ द ओपेक कंट्रीज, राइट? और पहले वाला जो डी बेयर डायमंड्स था, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। Now बच्चे, let's start with the next topic, and next topic is particularly the characteristics of oligopoly. बच्चे, when I talk about the characteristics of oligopoly, the first characteristics that is very important and that is missing from here is few sellers. A few sellers are there. This means there is competition, but competition among the few people. Is that clear? Jio, Airtel, Idea, they are having a competition. And they are a few of them, isn't it? Next is interdependence. What do you understand by interdependence बच्चे? In oligopoly market there is interdependence among the firms. एक फर्म का डिसीजन दूसरी फर्म के डिसीजन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। एक फर्म का आउटपुट या प्राइस से रिलेटेड डिसीजन दूसरी फर्म की प्राइस और आउटपुट डिसीजन के साथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होगा।
This is because each firm treats other firm as a rival. Therefore, it has to consider the possible reaction of its rivals बिफोर द प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन. अब सपोज करो जियो सोचता है कि वो प्राइसेस को कम कर दे, तो उसको पता है सामने वाला एयरटेल का रिएक्शन क्या होने वाला है. एयरटेल सोचता है वो प्राइसेस को बढ़ा दे, तो उसको पता है कि सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा. इज दैट क्लियर? सो एक्शन लीड्स टू अ रिएक्शन. दिस वेज चाहे वो प्राइस से रिलेटेड हो चाहे आउटपुट से रिलेटेड हो. दैट्स वाई वी कॉल दैट देयर इज़ अ ग्रेटर डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस. क्या बोलते हैं? बहुत हाई डिग्री ऑफ क्या है? इंटरडिपेंडेंस है. नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट? इट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीज़मेंट एंड सेलिंग कॉस्ट. बच्चे यहाँ पे बहुत खर्चा किया जाता है एडवर्टीज़मेंट्स के ऊपर भी और सेलिंग कॉस्ट के ऊपर भी. अब हम सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. एयरटेल की एक नई ऐड आई है वेयर द पर्सन इज़ वेरी बिजी और वो बोलती है कि आई डोंट हैव टाइम इवन टू डाउनलोड. इज़ दैट क्लियर? और मुझे एक ज़ीरो प्रॉब्लम नेटवर्क चाहिए. सो लेट्स फाइंड द सोल्यूशंस. कहाँ तक ये ज़ीरो प्रॉब्लम्स को लीड करता है. दिस मीन्स कितना खर्चा उन एडवर्टीज़मेंट्स के ऊपर किया होगा, उन साइट्स को ढूंढने में किया होगा, वहाँ पर उनकी शूटिंग्स के ऊपर किया होगा. सो व्हाट इज़ दैट? ये लोग एग्रेसिव एडवर्टीज़मेंट्स के थ्रू, डिफेंसिव मार्केटिंग टूल्स के थ्रू लार्जर एंड लार्जर मार्केट शेयर को अटेन करने की कोशिश करते हैं. इज़ दैट क्लियर? सो एडवर्टीज़मेंट्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर एडवर्टीज़मेंट्स नहीं होंगी तो हमें क्या पता चले कि हाँ हम लोग वी आर हेडिंग टू ज़ीरो प्रॉब्लम नेटवर्क. वी आर हेडिंग कि जस्ट एक क्लिक के ऊपर ही ऐसा नेटवर्क भी आता है, क्लिक करो कि हाँ इट इज़ बीइंग डन. इज़ दैट क्लियर? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड बड़े से बड़ी फाइल डाउनलोड हो जाए. दिस इज़ पॉसिबल, राइट? लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? ओनली थ्रू एडवर्टीज़मेंट्स. और एडवर्टीज़मेंट्स इतनी एक्सप्रेसिव है ना कि हमारे को उन एडवर्टीज़मेंट्स के थ्रू ईच एंड एवरीथिंग वी कम टू नो. क्लियर? So next point is, for this the firm spend heavily on advertisement. फर्म बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी के ऊपर खर्चा करती है, बहुत ज़्यादा खर्चा एडवर्टीज़मेंट्स के ऊपर करती है, बहुत ज़्यादा खर्चा सेल्स प्रमोशन के ऊपर करती है. एंड इसका मेन एम इसके पीछे क्या है? ओनली टू अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर्स. दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट whom? लार्ज नंबर ऑफ द कस्टमर्स. बच्चे एक और पॉइंट, firms avoid the price war. Do you know what is a price war? प्राइस वॉर का मतलब है जहाँ पर एक दूसरे से लगड़ना झगड़ना. दिस मीन्स वॉट? एक ने प्राइस को 5 रुपीज़ से स्लैश डाउन किया, दूसरे ने 10 से, तीसरे ने 15 से. दे आर फाइटिंग विद ईच अदर ओवर द प्राइस. अब इस तरह का कंपटीशन इज़ नॉट गुड फॉर देम. इज़ दैट क्लियर? क्योंकि अब इन लोगों को पता है कि इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर भी nobody is able to attain the share, nobody is able to attain the profit. Then why should they fight? They should stay together and get their share and they should be enjoying. Is that clear? लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा है, इसीलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट करो, अपना प्रोडक्शन करो, अपना अमाउंट मार्केट में बेचो एक कार्टेल बनाकर, एंड देन यू आर देयर सेटिस्फाइड. नो फाइटिंग, नो नथिंग. क्लियर? Next is, firms would avoid the price wars but engaged into non-price competition. बोलते प्राइस वॉर को तो हम अवॉइड कर देंगे, लेकिन फिर भी देयर शुड बी सम अदर सेंस ऑफ कंपटीशन. तो अदर सेंस ऑफ कंपटीशन इज़ अ नॉन प्राइस कंपटीशन जो यहाँ पर करेंगे. दिस मीन्स हम लोगों ने क्या किया? फ्री सेट ऑफ टी मग्स दे दिए किसी भी पैकेट के साथ. इज़ दैट क्लियर? अब सर्फ की बकेट आती है, सर्फ की बकेट के साथ आप सर्फ की 10 kgs के पैकेट के साथ आपको एक यहाँ पे सर्फ के साथ एक बाल्टी फ्री मिलती है. कई बार कोई चाय होती है, चाय के साथ आप लोगों को एक कंटेनर्स फ्री मिल जाते हैं. सो व्हाट इज़ इट? दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन. इज़ दैट क्लियर? तो ये लोग नॉन प्राइस कंपटीशन की पॉलिसी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं. बच्चे लेट्स सी इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व. बच्चे यहाँ पे द नेचर एंड पोजिशन ऑफ अ डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली कैन नॉट बी डिटरमाइंड. इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड वेरी प्रॉपरली. अभी मैं आपको आगे बताऊंगी. यहाँ पर हमारे पास इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व होता है. जो पहले वाला सेक्शन है डिमांड कर्व का डाउनवर्ड, दैट इज़ मोर इलास्टिक, एंड फाइनली आफ्टर अ पॉइंट द डिमांड कर्व टर्न्स आउट टू बी लेस इलास्टिक इन नेचर. तो एक ही डिमांड कर्व में हमारे पास 2 रोल्स बन जाते हैं.
पहले तो डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक, आफ्टर अ पॉइंट और अ किंक द डिमांड कर्व टर्न्स आउट टू बी लेस इलास्टिक इन नेचर. इज दैट क्लियर? नाउ द फर्म्स यहाँ पर दिस इज़ बिकॉज इट कैनॉट प्रिडिक्ट इट सेल्स करेक्टली. आपको पता है इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व क्यों है? एक तो ये रीज़न जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ठीक है, क्यों नहीं डिटरमाइन होते? वी वुड बी डूइंग इट इन ग्रेटर डिटेल अहेड. ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है? इट कैन नॉट प्रिडिक्ट इट सेल करेक्टली. बच्चे अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब ये कौन सा टाइम चल रहा है? करोना काल चल रहा है. अब करोना काल में कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट का लेवल डिसाइड नहीं कर सकती. इज़ दैट क्लियर? क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली एवरीवन इज़ देयर इन द लॉसेस. इज़ दैट क्लियर? सो दिस इज़ बिकॉज इनडिटर्मिनेट इसलिए है डिमांड कर्व क्योंकि यहाँ पर इट कैन नॉट प्रिडिक्ट इट सेल करेक्टली. इसको पता ही नहीं इसकी कितनी सेल होगी प्रोडक्ट की इन रिएक्शन टू द प्राइस चेंज बाय द फर्म. इज़ दैट क्लियर? सो बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर इसने एक और बात का ध्यान रखना कि अगर तो सपोज़ करो कि इसने अपने प्राइस को कम किया. इज़ दैट क्लियर? तो हर कोई फॉलो कर लेगा, और अगर इसने प्राइस को बढ़ाया तो कोई भी फॉलो नहीं करेगा. सो डिमांड कर्व गोज़ ऑन शिफ्टिंग एज राइवल्स टू चेंज देयर प्राइसेस इन रिएक्शन टू द प्राइस चेंज बाय द फर्म. क्लियर? So dear students, I was talking about a group behavior. So I told you the members of a group may agree to pull together to promote their mutual interest or fight for the individual's interest or to follow the group leader or not. यहाँ पर ये खुद से ही डिसाइड करेंगे कि इन लोगों का म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है, क्या हमारे को ग्रुप बिहेवियर के बेसिस पे चलना है या नहीं चलना है. Is that clear? Generally, you should remember each oligopolist closely watches the business behavior of the other oligopolist in the industry, and then he designs his moves on the basis of some assumptions of how they behave or are likely to behave. मतलब ये सामने वाले का बिहेवियर देख के फिर अपना बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं. Is that clear? So बच्चे behavior of members is also very uncertain here. You should remember. Clear? One very important point is then the kinked demand curve. बच्चे ओलिगोपोलिस्टिक के अंदर हम लोग यहाँ पे किंक्ड डिमांड कर्व को अटेन करते हैं. किंक्ड का मतलब क्या होता है? रिजिड. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स इट इज़ अ मोड. एक मोड आ गया, तो मोड तो अपने आप ही आया. पहले जो हमारा डिमांड कर्व था वो मोर इलास्टिक था, फिर एक किंक या एक मोड के बाद वो लेस इलास्टिक हो गया. इज़ दैट क्लियर? सो बच्चे यहाँ पर जो किंक है ये क्या बता रहा है कि प्राइस रिजिडिटी है. क्या है? प्राइस रिजिडिटी एट दिस पॉइंट. इन मैनी ओलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्रीज देयर इज प्राइस रिजिडिटी और स्टेबिलिटी. The prices remain sticky or inflexible for a long period of time. Students, we were talking about a kinked demand curve. बच्चे kinked demand curve क्यों होता है? Because of interdependence of the firms in oligopoly and because of inability of the particular firm to predict the behavior of other firm. आप सबको पता है यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस है. एक फर्म का डिसीजन दूसरे फर्म के डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा. बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर एक फर्म अपने प्राइस को कम करती है तो सब उसके पीछे दौड़े चले जाएंगे और प्राइस को कम करेंगे. वाई? बिकॉज लड़ाई झगड़ा यहाँ पे सिर्फ अपने मार्केट शेयर को अटेन करना है. जो सबसे पहले प्राइस को कम करता है वो एक ग्रेटर मार्केट शेयर अटेन कर लेता है, और जो धीरे धीरे उसके पीछे करते हैं उनका मार्केट शेयर थोड़ा कम रह जाता है. तो बच्चे याद रखना, यहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा है वो सिर्फ अपने मार्केट शेयर को अटेन करने का है. इज़ दैट क्लियर? सो बच्चे यहाँ पर हमारे को दूसरी फर्म का बिहेवियर नहीं पता. इज़ दैट क्लियर? सो यू शुड रिमेंबर दैट द डिमांड कर्व फेसिंग अ मोनोपोलिस्टिक फर्म loses its definiteness and determinateness. Is that clear? Determinateness as well as definiteness को ये lose कर देता है because of its interdependence on the other firms. Is that clear? So बच्चे यहाँ पर you should remember that जिस पॉइंट पे किंक बनता है उसका मतलब होता है कि द स्टिकी प्राइस लेवल शुड बी प्रेफर्ड. वाई? क्योंकि किंक इज फॉर्म्ड एट अ प्रिवेलिंग प्राइस लेवल, जहाँ पर उसके ऊपर वाला, किंक से ऊपर वाला जो कर्व है, डिमांड कर्व है, AR कर्व है, वो मोर इलास्टिक है, और किंक से नीचे वाला जो कर्व बनेगा वो लेस इलास्टिक बनेगा. और ये जो डिफरेंस इन इलास्टिसिटीज़ आ रही हैं और किंक आ रहा है,
that is only due to the difference in the particular competitive reaction patterns. Is that clear? हर एक के जो यहाँ पर competitive reactions हैं वो अलग अलग हैं. Each oligopolist believes that if it lowers the price, हाँ सारे के सारे लोग उसको फॉलो करेंगे and would accordingly lower the price. Whereas अगर वो प्राइस को बढ़ाएगा तो कोई भी उसको फॉलो नहीं करेगा and he would be losing a greater market share. Is that clear? Now बच्चे let's try to understand. I had explained you the whole section. So let's see who gave this kinked demand curve. You should remember that the kinked demand curve was given by Paul M. Squeezy. Who gave it? Paul M. Squeezy. And according to the kinked demand curve hypothesis, the demand curve faced by oligopolist has a kink at a prevailing price. And I just gave you the decisions. क्यों यहाँ पर होता है? जो पोर्शन किंक के ऊपर होता है बच्चे, जैसे कि अब आप यहाँ पर ये डायग्राम में देखोगे, यहाँ पर ये के पॉइंट से ऊपर वाला जो पोर्शन है डी के, दैट इज़ मोर इलास्टिक. What is ED here? You should remember that this portion, यहाँ पर जो ED है that is greater than 1. और ये वाला पोर्शन है यहाँ पर ये KD bigger D, यहाँ पर ED is less than 1. Is that clear? So this is particularly regarding the kinked demand curve, right? Now but just try to understand one very important point. The assumed reaction pattern कैसे चलता है? If the oligopolistic raises a price above the prevailing OP, he fears that none of his rivals will follow him. और जब कोई भी उसको फॉलो नहीं करेगा तो he will lose lot of customers, क्योंकि उसका तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, मार्केट में इनफैक्ट हर किसी से ज़्यादा है, एंड ऑटोमेटिकली उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएंगी और उसका मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगा. Thus the demand with respect to price rise above the price prevailing is highly elastic as indicated by the upper portion of a demand curve, and the oligopolist will therefore like to stick to the kinked demand curve. I'll explain you with the help of a diagram. Now बच्चा just see to it. If the oligopolistic reduces the price below the prevailing price OP, तो यहाँ पर क्या होगा? उसको पता है कि ये वाला पोर्शन लेस इलास्टिक है. अगर वो प्राइस को बहुत ज़्यादा भी फॉल कर देगा तो भी उसकी क्वांटिटी में कोई ख़ास इंक्रीज़ नहीं आने वाला है. इज़ दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पर हर कोई उसका उसी पैटर्न को फॉलो करेगा. देयरफॉर जब उसको तब भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है और प्राइस में रेट ऑफ फॉल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और क्वांटिटी में इतना कंपैरेटिव आउटपुट इंक्रीज़ नहीं है, तो इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर हिम to stick to a sticky price level that is above this price level. Is that clear? So बच्चे, अगर एक oligopolist को मार्केट में गेन करना है तो it is really important for him to stick to the prevailing price, right? Then only he can gain in an economy. A kink will therefore be formed at prevailing price which remains rigid. Kink क्या रहता है? Rigid or sticky or stable at that level. Is that clear? I'll be explaining the detail with the help of diagram now. बच्चे, one more behavior is left and that is what? Price rigidity. Yes, what is price rigidity? I told you. Indirectly मैंने जो अभी point आपको explain किया उसमें मैंने आपको price rigidity के बारे में यहाँ पर explanation दे ही दी है कि kink से यहाँ पर it's always better to determine the kink. क्योंकि अगर कोई भी सेलर अपनी प्राइस को बढ़ाता है उसको पता है नोबडी इज़ गोइंग टू फॉलो, और क्योंकि ये पोर्शन मोर इलास्टिक है तो ही इज़ गोइंग टू लूज़ अ ग्रेटर मार्केट शेयर, ग्रेटर सेल्स लूज़ करेगा क्योंकि किसी ने उसको फॉलो नहीं करना है. इज़ दैट क्लियर? लेकिन अगर कोई भी सेलर, आपको पता है किंक के बाद हमारा डिमांड कर्व क्या है? लेस इलास्टिक. तो इसको क्या पता है कि अब ये लेस इलास्टिक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी सेलर अपनी प्राइस को बहुत ज़्यादा से भी कम करे तो भी उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लेस इलास्टिक में क्वांटिटी ज़्यादा तो बढ़नी नहीं है, तो दोनों तरफ से उसको बेनिफिट नहीं हो रहा. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टिक टू अ स्टिकी प्राइस लेवल टू अटेन अ सब्सिक्वेंट प्रॉफिट. इज़ दैट क्लियर?
और एक और बात का ध्यान रखना बच्चे, व्हेन आई टॉक अबाउट अ स्टिकी प्राइस लेवल, दिस इज़ अ स्टेबल प्राइस लेवल. विच प्राइस लेवल? स्टेबल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी. इज़ दैट क्लियर? ना तो वो प्राइस को बढ़ाकर बेनिफिट में है और ना ही वो प्राइस को घटाकर बेनिफिट में है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू फॉलो अ स्टिकी प्राइस लेवल. मोरओवर बच्चे आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस अब इसको पता लग चुका है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा है. इट्स बेटर टू सेटल एट वन पर्टिकुलर प्राइस एट वन पर्टिकुलर प्राइस. सो बच्चे दिस वॉज ऑल अबाउट द किंक्ड डिमांड कर्व एंड प्राइस रिजिडिटी. नाउ लास्ट पॉइंट रह गया सब्सटेंशियल बैरियर्स टू एंट्री. आई टोल्ड यू यहाँ पे नो फ्री एंट्री एंड नो ब्लॉक्ड एंट्री इज देयर. So we can say that there is a substantial barriers to entry. क्योंकि बच्चे यहाँ पर एक तो इन्वेस्टमेंट का लेवल इतना हाई है कि अगर किसी भी फर्म के पास इतना पैसा होगा तभी वो आकर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है, अदरवाइज नॉट. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जियो. जियो वॉज नॉट देयर इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री अर्लियर, बट जियो इज़ नाउ हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर. वाई? ओनली बिकॉज ऑफ द फाइनेंसेस. ह्यूज फाइनेंस वॉज इन्वॉल्व और ह्यूज फाइनेंस में जब इसने इन्वेस्टमेंट कर दी इनटू द मार्केट ही इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे सब्सटेंशियल बैरियर्स है टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स. या तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, इज़ दैट क्लियर, तब आप एंटर कर सकते हो, या बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट आप करोगे, देन ओनली इट वुड बी प्रेफरेबल फॉर यू टू एंटर. इज़ दैट क्लियर? नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट ऑन द बोर्ड. Now dear students, let's start with the oligopoly with the help of a diagrammatic representation. You know it very well, it is a kind of imperfect competition and there are a few sellers of the product. How many sellers are there? A few sellers of the product. And these a few sellers range between 2 to 10. But let's talk about the features. यहाँ पर a few sellers हैं, आप लोगों को पता है they are ranging between 2 to 10. Interdependence. एक जना जो अपनी प्राइस को डिटरमाइन करता है उसी के बेसिस पे दूसरा अपनी प्राइस और आउटपुट पॉलिसी डिटरमाइन करेगा. मतलब देयर इज इंटरडिपेंडेंस हियर. इज दैट क्लियर? ऑफ द डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट इज ग्रुप बिहेवियर. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डूइंग दैट यहाँ पे ग्रुप बिहेवियर है. अगर तो बहुत सारी फर्म्स देखती हैं कि हाँ दे वांट टू हैव अ कोल्यूजन विद ईच अदर, तो दे फॉर्म अ कार्टून. अगर वो सोचती है कि दे हैव टू गिव अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, तो दे ट्राई टू कम्पीट विद ईच अदर. नेक्स्ट यहाँ पे खर्चा एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर बहुत किया जाता है क्योंकि हर कोई अपने प्रोडक्ट को इंडोर्स करना चाहता है और ग्रेटर मार्केट शेयर को अटेन करना चाहता है. द किंग डिमांड कर्व. बच्चे यू शुड रिमेंबर दैट दिस काइंड ऑफ अ डिमांड कर्व इज नोन एज अ किंग डिमांड कर्व. इस डिमांड कर्व में दो तरह की इलास्टिसिटीज हैं, ईडी ग्रेटर देन 1 एंड ईडी लेस देन 1. जनरली एक ही तरह की इलास्टिसिटी एक डिमांड कर्व के अंदर होती है जो हम लोगों ने अलग अलग मार्केट कंडीशंस में देखा है. परफेक्ट में आपने देखा कि एआर कर्व की इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटी. मोनोपोलिस्टिक में आपने देखा ईडी इज ग्रेटर देन 1 क्योंकि बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल. मोनोपोली में आपने देखा कि ईडी इज पर्टिकुलरली लेस देन 1. व्हाई? बिकॉज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट आर अवेलेबल. लेकिन यहाँ पे हमारी जो दो इलास्टिसिटीज हैं वो क्यों फ्रेम होती हैं? ड्यू टू दिस किंक्ड डिमांड कर्व. और ये किंक का मतलब क्या होता है? रिजिड. रिजिड हो जाना. यहाँ पे हम अपने डिसीजंस में रिजिड हो जाते हैं, हम प्राइस के लिए रिजिड हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि जल्दी जल्दी प्राइस ना बदले. आई विल कम टू दैट इन डिटेल. सो आई होप द किंक डिमांड कर्व इज क्लियर. जहाँ पर दो इलास्टिसिटीज आती हैं, किंक का मतलब होता है ये मोर. दिस पॉइंट जहाँ पर इससे पहले वाला जो कर्व है मोर इलास्टिक है और इसके बाद वाला जो कर्व है दैट इज लेस इलास्टिक इन नेचर. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे लेट्स सी द प्राइस रिजिडिटी. अगेन द सेम थिंग. इट इज ऑलवेज टू फॉलो अ रिजिड प्राइस लेवल rather than compete with each other. Is that clear? Rather than give a tough competition to each other. क्योंकि आपको पता है आपके डिसीजंस दूसरे की प्राइस और आउटपुट पॉलिसी को इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे. नेक्स्ट इज सब्सटेंशियल बैरियर्स ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स. जल्दी जल्दी कोई भी नई फर्म्स यहाँ पर एंटर नहीं होती हैं क्योंकि
जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी सारे केसेस मोनोपोली वाले हैं, यहाँ तो गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज देयर, या यहाँ पर लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड, या यहाँ पर हमारे पास नेचुरल अकरेंस हो जाती है। सो दैट्स वाई तो बच्चे यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट सब्सटेंशियल बैरियर्स टू एंट्री, ऐसा नहीं है रोक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोई जल्दी से नहीं आएगा क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ये जो मेरा डिमांड कर्व है, जो AR कर्व है ओलिगोपोली का, सबसे पहले तो वी आर डूइंग विच मॉडल? वी आर डूइंग द रिजिड प्राइस लेवल, रिजिड प्राइस लेवल or the Kent demand curve given by Professor Sweezy. Paul A. Sweezy. Is that clear? You should remember the name. Paul A. Sweezy has given this concept of Kent demand, sticky price level. Clear? Now, let's just try to understand. ये वाला पोर्शन क्या है? मोर इलास्टिक, और ये वाला पोर्शन क्या है? लेस इलास्टिक। बच्चे यहाँ पर इट इज ऑलवेज बीन प्रेफर्ड टू कीप अ स्टिकी प्राइस लेवल एंड अ फिक्स्ड लेवल ऑफ आउटपुट। इज दैट क्लियर? अब जरा ध्यान से देखना, अगर कोई भी फर्म आपको पता है प्राइस को बढ़ाती है, थोड़ा सा ही बढ़ाया है, OP से OP1, उसको पता है कोई भी उसको फॉलो नहीं करेगा एंड विल लूज अ ग्रेटर मार्केट शेयर। देखो कितना मार्केट शेयर लूज कर दिया, कितना आउटपुट, कितनी सेल्स कम हो गई Q से Q1। प्राइस तो बहुत थोड़े से बढ़ा था लेकिन आउटपुट में बहुत ज़्यादा कमी आ गई एंड नोबडी इज गोइंग टू फॉलो हियर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर उसको कोई प्रॉफिट होगा? नन, कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल फॉर द फर्म टू कीप एट दिस स्टिकी प्राइस लेवल, दिस प्राइस लेवल। इज दैट क्लियर? अब बच्चे ये वाले पोर्शन से देखते हैं, EB। अगर एक फर्म को लगता है कि हाँ मुझे ग्रेटर मार्केट शेयर को अटेन करना है, मैं अपनी प्राइस को बहुत ज़्यादा से कम कर देता हूँ। एक फर्म ने अपनी प्राइस को OP स्टार से OP2 तक कम कर दी, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी उसका आउटपुट कितना बढ़ा? आउटपुट बढ़ा लेकिन बहुत ज़्यादा कम अमाउंट से, Q2 से। कोई फ़ायदा हुआ? आगे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, उल्टा प्राइस शेयर बहुत ज़्यादा कम हो गया लेकिन मार्केट शेयर तो बहुत माइन्यूट अमाउंट से बढ़ा। तो इसका क्या फ़ायदा? इट्स ऑलवेज बेटर अपने प्राइस को थोड़ा सा हाई रखो और कम आउटपुट बेच लो थोड़ा सा। इज दैट क्लियर? सो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल दैट अगर एक फर्म ने प्रॉफिट्स कमानी है, शुड स्टॉप फाइटिंग विद ईच अदर एंड शुड फॉलो अ स्टिकी प्राइस लेवल, जहाँ पर E पॉइंट पे डिटरमाइन होगा और जहाँ पे हमारा प्राइस कितना होगा OP स्टार और आउटपुट कितना होगा OQ। Is that clear to all of you? So you should remember, यहाँ पर लिख रही हूँ AE portion is more elastic. If a firm tries to increase the price by larger amount, by smaller amount, but at the same time loses a greater market share. क्या लूज कर देते हैं? ग्रेटर मार्केट शेयर। तो आप खुद बताओ क्या ये प्रेफरेबल है? नो। यहाँ पर हमारा प्राइस लेवल कितना था? OP1। सो दिस इज नॉट प्रेफरेबल। क्लियर? लेट्स सी द अदर केस नाउ। हियर द फर्म ट्राइज टू सेट अप व्हिच प्राइस? एट OP2 प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे पोर्शन कौन सा है? EB पोर्शन। इस पोर्शन के ऊपर the demand curve is what in nature? Is less elastic. ठीक है? If firm lowers the price, large amount of price,
to increase the market share, sales increases but by a smaller amount. So अब आप मुझे बताओ क्या ये भी एडवाइजेबल है? नो, दिस इज अगेन नॉट एडवाइजेबल. What is advisable? To keep a sticky price level, rigid price level. Is that clear? Now let's see with the help of a price and output determination कि rigid price level कैसे determine होगा. वैसे आपको सिंपल यहाँ पर conditions पता होनी चाहिए, and I think the conditions are clear also. Conditions of producer equilibrium. What are the conditions of producer's equilibrium? Same conditions होती हैं बच्चे. MR should be equal to MC. MC should be rising. Is that clear? Now, let's see with the help of this diagram here. Everybody please look on the board for this diagram. Now, हमारे पास यहाँ पर y-axis, x-axis, this is your point of origin. यहाँ पे revenue कर रही हूँ मैं AR curve and MR curve. यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट भी आ जाएगा साथ में. दिस इज यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड. क्लियर और नॉट? ना, यू नो इट वेरी वेल. AR कर्व पहले मोर इलास्टिक, आफ्टर अ किंक इट टर्न्स आउट टू बी लेस इलास्टिक. इज दैट क्लियर? ये हमारा AR कर्व है और मैंने इसको नेम दे दिया A. दिस इज E हियर एंड दिस इज B हियर. इज दैट क्लियर? अब बच्चे आप सबको पता है कि AR के बिल्कुल नीचे कौन सा कर्व होता है? MR. But MR should be half AR. So let's draw the MR curve. यहाँ पर एक special MR curve होता है जिसको हम discontinuous MR curve बोलते हैं. MR curve यहाँ पर क्या होगा? Do remember, MR is a discontinuous curve. कौन सा curve होगा? Discontinuous curve होगा. Is that clear? Very important. MR curve is a discontinuous curve here. Is that clear? Now, बच्चे just try to understand why discontinuous. क्योंकि देखो यहाँ पे इलास्टिसिटीज का फर्क है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा MR को बिल्कुल इस पॉइंट के नीचे. तो मैं यहाँ से एक थोड़ी सी डॉटेड लाइन नीचे तक ले जाती हूँ क्योंकि मुझे यहीं पे इक्विलिब्रियम चाहिए. यही इक्विलिब्रियम आउटपुट है जो कि हमारे को ये OQ पॉइंट से पता चलता है और यही स्टिकी प्राइस लेवल चाहिए. इज दैट क्लियर? Now let me draw the AR curve बच्चे. AR curve half MR. Is that clear? So let me draw that curve here. This is MR here. अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो half AR बन रहा है. अब मेरे को इस पोर्शन के लिए अलग से MR बनाना है, but after a gap. This is another MR curve. ये वाला जो पोर्शन है, let me label it. This is AD. AD पोर्शन किसको एक्सप्रेस कर रहा है? AD पोर्शन एक्सप्रेसेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1. अब ये जो पोर्शन है, दिस इज FC. ओके, लेट मी कॉल इट FC पोर्शन. ये जो FC पोर्शन है, इट एक्सप्रेसेस ED इज लेस देन 1. रिमेंबर, MR की अलग अलग इलास्टिसिटीज हैं क्योंकि AR की इलास्टिसिटीज अलग अलग है. और ये जो गैप मैंने दिया है ये किसके लिए? ताकि मेरा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट बिल्कुल E पॉइंट के ऊपर आ सके. इज दैट क्लियर? अब व्हाट आर द कंडीशंस? MR को किसके बराबर होना था? MC. और MC को क्या होना था? राइजिंग. तो अब मेरे को आउटपुट का लेवल OQ चाहिए. अब मैं अपना MC कर्व बनाऊंगी जो कि इस पोर्शन के अंदर से या तो D पॉइंट पे कट कर सकता है या F पॉइंट से कट कर जा सकता है या D और F के बीच में किसी भी पॉइंट को कट कर जाएगा. बच्चे अगर इन पॉइंट्स में से कट करता है तभी जाकर E हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बनेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस तो AR कर्व भी डिटरमाइन करता है. सो लेट्स सी टू इट. मैंने अपना MC यहाँ पर बना दिया. दिस इज माय MC कर्व. सी टू इट. यहाँ पर MR इज इक्वल टू MC एट दिस पॉइंट. MR is equal to MC and MC is rising. आपको बस एक ख्याल रखना है, आपका जो MC है वो D to F
किसी भी पॉइंट पे कट कर सकता है, क्योंकि कोई भी पॉइंट हमारे को किस पॉइंट पे ले जाएगा, इस ई पॉइंट पे, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इसी पोर्शन को हम ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से हम लोग ये पॉइंट लेंगे टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल। इक्विलिब्रियम आउटपुट किस कर्व ने डिटरमाइन किया, MR एंड MC टुगेदर। इक्विलिब्रियम प्राइस किसने डिटरमाइन किया, AR कर्व ने। तभी तो इस OQ आउटपुट पे हमारी प्राइस कितनी हो गई, इट इज EQ और इट इज OP। इज दैट क्लियर? हेंस इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड, और ये इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे डिटरमाइन है, एट द पॉइंट ऑफ दिस किंक। सो बच्चे ऑलवेज प्रेफर, which point is preferable for you? Only the point of kink is preferable for us, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे को अच्छे खासे प्रॉफिट्स होंगे। अगर एक प्रोड्यूसर सोचे कि मैं यहाँ पर अपने प्राइस को किंक के बियॉन्ड इंक्रीज कर दूँ और प्रॉफिट्स कमा लूँ, नहीं कमा पाएगा, क्योंकि ही विल लूज अ ग्रेटर मार्केट शेयर फॉर द कमोडिटी। और अगर एक प्रोड्यूसर सोचे कि वो प्राइस को कम कर कर ज़्यादा पैसा कमा ले, तो भी नहीं कमा पाएगा, क्योंकि आउटपुट बढ़ेगा तो सही, लेकिन बहुत कम अमाउंट से, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए वेयर इज द इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड? इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डिटरमाइंड एट पॉइंट ऑफ किंक, क्योंकि यहीं पे MR इज इक्वल टू MC एंड MC इज व्हाट, राइजिंग। आई होप दिस टॉपिक ऑफ ओलिगोपोली under the kink demand curve is perfectly clear to you now.